back to my channel. I'm back with another chapter, NCRT class 10th. As you all know that we are approaching towards exam and it's very important to just go through with the whole NCRT PDF as it's very necessary to read it line by line. So here is the explanation. I hope you have watched part 1 and 2 of his first flight, and in this I will be explaining the black aeroplane. So the moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me, and there wasn't a cloud in the sky. So here author was telling us कि moon था, it means थोड़ा सा night sky हो रहा था एंड स्टार्स शाइन कर रहे थे, क्लियर स्काई था अबव मी, मीन्स अब ऑथर देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई. तो अभी उसने फ्लाई नहीं किया था एंड ही वाज टेलिंग अस कि बिल्कुल बिल्कुल क्लियर स्काई है. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. So author बहुत ज़्यादा happy था कि मतलब everybody will be sleeping and I'll be flying my old Dakota aeroplane over France and he'll be going back to England. He was actually very happy and he was dreaming of his holiday and looking forward to being with his family because he was really waiting for that time. I looked at my watch 1:30 in the morning. So उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा था, उस टाइम पे 1:30 हो रहे थे सुबह के. And he thought that I should call Paris control soon. I thought as I looked past the nose of aeroplane, I saw the lights of big city in front of me. So he saw the city and he switched on the radio and said, Paris control Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. So whenever they say something, they have to take their flight name also कि कौन सी flight है, because Paris control जो है वो सिर्फ एक फ़्लाइट को रेडार पे कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स होती हैं. तो वेन एवर पायलट कॉल्स ही और शी हैज़ टू टेल द नेम ऑफ देयर फ्लाइट ऑल्सो. So he called Paris control and said DS-088 here, can you hear me? And he just informed that I am on my way to England. Over. And the voice from the radio answered me immediately. It means that radio से वापस उसको आवाज़ आई that DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. तो उसको रेडियो से वापस आवाज़ आती है बैक पैरिस कंट्रोल से एंड दे से कि यस DS-088 वी कैन हियर यू. अब आपको टर्न करना है 12 डिग्रीज वेस्ट पे, बिकॉज दे कॉल टू पेरिस कंट्रोल टू नो अबाउट द डायरेक्शंस ऑल्सो, बिकॉज जो पेरिस कंट्रोल होता है वो प्रॉपर रेडार पर डायरेक्शंस वगैरह भी इंस्ट्रक्ट करते हैं पायलट को. And I checked the map. It means that he checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. So उसने अपना मैप चेक किया, कंपस चेक किया एंड उसने जो उसके पास में सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक बचा हुआ था वो उसने यूज़ किया. एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस उसने डकोटा को, अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उसने 12 डिग्रीज वेस्ट के टूवर्ड्स टर्न कर लिया, टूवर्ड्स द इंग्लैंड. I'll be in for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So उसने बोला कि बस अब मैं पहुंच जाऊंगा and I will be having my good great English breakfast. And he thought that also everything was just going very well. It was an easy flight. कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत इजी गोइंग फ्लाइट थी, बहुत काम डाउन फ्लाइट थी. एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग फाइन. एंड देन पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ क्लाउड्स. अब 150 किलोमीटर पेरिस उसने पार कर लिया था. पेरिस उससे 150 किलोमीटर्स पीछे था. एंड व्हेन ही सॉ क्लाउड्स, Paris was about 150 kilometers behind me and he saw the clouds. So Paris अब 150 किलोमीटर पीछे जा चुका था
और अब जाके उसको क्लाउड्स नज़र आ रहे थे एंड दे वर नॉट नॉर्मल क्लाउड्स, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स लग रहे थे एंड इट फील्स लाइक कि स्ट्रॉम आ सकता है, सो ही कॉल्ड देम स्ट्रॉम क्लाउड्स. They were actually huge and they looked like black mountains standing in front of me across the sky. So वो इतने डार्क थे, इतने बड़े लग रहे थे कि उसने उनको ब्लैक माउंटेन्स से कंपेयर किया था. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब उसको पता था उसके पास दो ऑप्शंस हैं, बट वो दोनों ही ऑप्शंस नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑप्शन इज कि या तो उसके ऊपर से जाके चला जाए, ही हैज़ टू फ्लू ओवर देम, या फिर उसको एक टर्न लेना पड़े और वो क्लाउड्स वाले रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से जाए. बट दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल नहीं थे बिकॉज he can't flew over them. It's not like it's not easy to go from there. It's risky and it's dangerous. So and उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो पूरा टर्न लेकर दूसरी डायरेक्शंस में जाकर जाए. तो both options were not feasible and he ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. एक ऑप्शन था कि वो पेरिस वापस जा सकता था क्योंकि पेरिस अभी 150 किलोमीटर ही पीछे था, तो वो पेरिस वापस जा सकता था. पर उसके दिमाग में ये भी थॉट था कि मुझे तो घर भी जाना है. अब या तो पेरिस चले जाओ या घर चले जाओ, दो ऑप्शंस थे. Then he thought that I wanted that breakfast, I'll take the risk. And he thought that he'll take the risk. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. उसने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा और उसने straight storm में अपना एरोप्लेन उड़ा दिया. And inside the clouds, everything was suddenly black, of course, because they were the storm clouds. And everything was suddenly black. And it was impossible to see anything outside the aeroplane because he was in the storm. तो बाहर का कैसे ही दिखता. The old aeroplane jumped and twisted in the air because he couldn't see anything. तो कैसे fly करना है, कैसे नहीं करना. It was very dangerous situation. He tried to looking at the compass, but he couldn't believe. What he couldn't believe? Look, he was just inside the black clouds and his eyes couldn't believe कि जो compass था, it was turning round and round and round and it was dead. उसका कंपस भी चलना बंद हो गया था. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. बाकी जो instruments थे वो भी चलने बंद हो गए. उसने रेडियो ट्राई किया. He said that Paris control, can you hear me? But कोई आंसर नहीं आया. Radio was dead too. Now what will he do कि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके पास. No instrument is working and उसका कंपस भी बंद हो गया. How will he fly? He had no radio, no compass. He could not see where he was. He was lost in the storm actually. Then suddenly what happened is, then in the black clouds quite near him, he saw another aeroplane. उसे एक और एरोप्लेन दिखता है जिसकी कोई लाइट्स नहीं होती हैं, कोई विंग्स नहीं होती हैं, but I could see it flying next to me through the storm. हल्का सा वो रिलैक्स होता है कि उसको एक और एरोप्लेन दिखता है उसी स्टॉर्म में. एंड इट्स अ ब्लैक एरोप्लेन क्योंकि उसकी कोई लाइट्स नहीं होती हैं, कोई विंग्स नहीं नज़र आ रहे होते हैं एंड बिल्कुल उसके साथ में ही वो भी उड़ रहा होता है. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. उसने देखा, खुद देखा उसने कि पायलट जो है उसका फेस उसके टुवर्ड्स टर्न हुआ है. दूसरे पायलट ने उसको देखा है, ऑथर को देखा है एंड ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन कि चलो कोई तो है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. एंड ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड एंड जो दूसरा पायलट होता है वो अपना हैंड लिफ्ट करता है और वेव करता है और वो उसे कहता है फॉलो मी. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट बाय एनी चांस. दूसरे वाले पायलट को पता होता है
कि ये लॉस्ट हो गया है, ये गुम गया है, इसको डायरेक्शन नहीं समझ आ रही है. एंड आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और ऑथर को भी ऐसा लगता है कि वो उसे हेल्प कर रहा है, तो वो भी उसे सुन लेता है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो वो उसके टूवर्ड्स आ जाता है दूसरा एरोप्लेन जो उसके नेक्स्ट टू होता है, ताकि डकोटा जो है वो उसको ईजिली फॉलो कर ले. एंड author was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child because उसको तो कुछ डायरेक्शन नहीं पता होती है. एंड ही थॉट दैट जो दूसरा पर्सन है, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है, वो उसको हेल्प कर रहा है, एंड ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम. तो उसने सोचा कि अब मैं उसे प्रॉपरली फॉलो करूँगा. एंड लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड ऑथर ने स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो किया. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी उसने देखा कि अभी भी जो ब्लैक एरोप्लेन है, दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो अभी भी उसके आगे है, एंड अभी भी उसे उसी को फॉलो करना है. नाउ द थिंग इज दैट इतना ज़्यादा फ्यूल ही नहीं है. देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5-10 मिनट्स मोर. तो अब इतना ही फ्यूल था कि बस वो 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था, इससे ज़्यादा फ्यूल नहीं था. तो उसको ये टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब ये जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है, मुझे इसके पीछे कितनी देर तक जाना है, बिकॉज आधा घंटा ऑलरेडी हो गया है, और आई डोंट नो कि मुझे उसके पीछे और कितनी देर जाना है, बिकॉज ऐसे तो मेरा फ्यूल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है. एंड ही वॉज सो फ्राइटेंड. वो इतना ज़्यादा डर गया था कि पता नहीं क्या होगा, बिकॉज फ्यूल ख़त्म हो गया तो एयरक्राफ्ट तो उड़ ही नहीं सकता, तो वॉट. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. बट लकीली उस टाइम पे जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आया कि फ्यूल उसका ख़त्म होने वाला है, देन ओनली थोड़े टाइम में जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, एंड जो ऑथर होता है वो भी उसको फॉलो करता है थ्रू द स्टॉर्म. Suddenly he came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of him. वो क्या होता है, वो रनवे होता है, एयरपोर्ट होता है. इट मीन्स नाउ ऑथर इज सेफ, वो अपने एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है. He turned to look for my friend in the black aeroplane. वो पीछे मुड़ने की कोशिश करता है और वो देखने की कोशिश करता है, एंड ही ऑब्वियसली कॉल दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पायलट हिज फ्रेंड, बिकॉज ऑब्वियसली उसने उसकी हेल्प करी थी. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. जब क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं, तो उसको वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखता. देयर वॉज नथिंग देयर. एंड बहुत अजीब सा भी लगता है ऑथर को ये देखकर कि अभी तो ये सारे रास्ते मेरे साथ था जब तक स्टॉर्म था, अब जैसे ही क्लियर स्काई हुआ है, एयरपोर्ट पे मैं पहुंच गया हूँ, आई एम एबल टू सी द एयरपोर्ट, एंड पीछे वो नहीं है. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, एंड आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. और वो जाता है सीधा कंट्रोल टावर पे. ही वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. वो जाता है कंट्रोल सेंटर और वो पूछता है कि वो कहाँ है और वो दूसरा पायलट कौन था, मुझे उसको थैंक यू बोलना है. शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. तो जो वुमेन होती है पेरिस कंट्रोल पे एंड द कंट्रोल टावर, नॉट द पेरिस कंट्रोल एंड बट वो जो भी कंट्रोल टावर पे पहुंचता है, बेसिकली वॉज गोइंग टू द इंग्लैंड, तो अब वो इंग्लैंड वाले कंट्रोल टावर पे होता है. तो जब वो वहाँ जाता है और वो वहाँ पूछता है कि वो कहाँ है, तो वहाँ पे जो लेडी होती है वो हंसने लग जाती है. वो बोलती है अनदर एरोप्लेन up there in the storm. She said no other aeroplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. और मुझे रेडार पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही एरोप्लेन जो है वो दिख रहा है. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो.
तो उसने बोला मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए किसने हेल्प करी. And without more fuel in my tank, who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो उसने बोला तो वो कौन था जिसने मेरी हेल्प करी है, प्लीज चेक इट ऑन रेडार, कोई तो होगा. सो बेसिकली आई हैव यूज दिस वर्ड अर्लियर ऑल्सो. रेडार इज द होल सिस्टम where one can see the direction, speed and everything for the aircraft, और जिससे पायलट को फर्दर इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं. सो पायलट ने पूछा कि कौन था वो जिसने मुझे हेल्प करी है. सो बेसिकली इट वॉज अ मिस्ट्री कि किसने ऑथर की हेल्प करी है एंड हु वॉज देयर टू जस्ट make his flight successful. So it's mystery, and this is the chapter all about which name Black Aeroplane. So the title is justified that the black aeroplane was there, and it's a mystery that where it's now. Hope you have understood this chapter, the black aeroplane. If you have any doubts, you can just pin down in the comment section and I will explain you. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel.